चालू बतो ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಟಗಿ ಶ್ರೀ ಬೃಹನ್ಮಠವು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಹೊಟಗಿ ಶ್ರೀ ಬೃಹನ್ಮಠದ ವರ್ತಮಾನ ಗುರುಗಳಾದ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ತಪೋರತ್ನಂ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಟಗಿ ಶ್ರೀ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಮಹಾಮಠಾಧೀಶರಾದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಳಿಯೋಣ, ಅಷ್ಟಾಭರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ, ಇಷ್ಟ ಶಿವಯುಗ ಸಾಧನೆಯ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಶಿವಯುಗ ಸಾಧನೆಯ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ, ಮುಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯೋಣ, ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ, ಅರುವಿನ ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗೋಣ. ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ, ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಗುರುಚನ್ನ ವೀರರು ನಮಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ, ಗುರುಚನ್ನ ವೀರರು ನಮಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ
ಶಿವನ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವನ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವನ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಶಿವನ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಶಿವನ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಶಿವ ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನವೀರರು ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನವೀರರು ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವರು ಶಿವನವತಾರಿ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವರು ಶಿವನವತಾರಿ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ದಿಂದ ಬಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವೀರ ತಪಸ್ವೀರರು
ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಳವಾರಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರಯ್ಯ ಗೌರಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ವರರ ಉದರದಿಂದ ಶಿವತೇಜದ ಚನ್ನವೀರರು ಜನಿಸಿಧರೆಗೆ ಬಂದರು. ರೇಣುಕನೆಂಬ ನಾಮ ಪಡೆದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನವೀರರು. ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ ರಂಗನಪೇಟೆ ಸುರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ವಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದರು. ಉಗ್ರ ತಪವನ್ನು ಕೈದು ವೀರ ತಪಸ್ವಿಯಾದರು. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನವೀರರು. ಶ್ರೀಮಠದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದರು. ಭಕ್ತ ವೃಂದ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಳಕೋಟೆಯ ಹಿರೇಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗುರುಗಳು ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನವೀರರು. ಚನ್ನವೀರರು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದರು. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಪದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಸಾರಿದರು. ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಅಳಿದು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿದರು. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನವೀರರು. ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವೀರಶೈವ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದು ಬೋಧೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಂಗಾರ ಬಟ್ಟಲ ನಾಟಕ ರಚಿಸಿ ಆಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಬೀರಿದರು. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವೀರ ತಪಸ್ವಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನವೀರರು. श्री गुरुभ्यो नमः। पंचाश्वधनोद्भूतान् पंचतत्त्वादिनायकान् पंचब्रह्ममयानौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरु त्रैलोक्य संपदालेख्य समल्लेखन वित्तहे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। भवता परम नित्यं चिन्मयं निरताप्सं श्री चन्नवीर शिवाचार्य नमामि भूतिलीश्वरम्। भक्तोद्धारकं नित्यं तेजोमयं तपोनिधिं श्री योगिराज शिवाचार्य नमामि भूतिलीश्वरम्। आज इस श्रावण पर्व का
उपलक्ष्य में श्रावण मास तपोनुष्ठान आध्यात्मिक समिति पिंपरी चिंचोड़ा पुणे, इस समिति का जो आयोजन किए हुए इस प्रत्यक्ष चित्र चेहरा का मतलब फेसबुक का लाइव कार्यक्रम जो सभी गुरुजनों का और अपने पीठाधीश्वरों का जो आशीर्वचन आप इस फेसबुक का माध्यम से इन्होंने इस आध्यात्मिक समिति ने, श्रावण मास का तपोनुष्ठान आध्यात्मिक समिति ने आप लोगों के पास जो एक सुनने का मतलब आप घर बैठे बैठे गुरुजनों का जो आशीर्वचन, उनका दर्शन करने के लिए ये सुविधा इस समिति ने करवाए। इसका जो मुख्य संयोजक महेश स्वामी जी ने इस कार्यक्रम का जो गुरु जी का मतलब जगत गुरु जी का मार्गदर्शन से उन्होंने किए हुए इस कार्यक्रम में आज श्री ब्रह्ममठ ओटकी शाखा मठ, श्री ब्रह्ममठ ओटकी शाखा मठ MIDC, आज आप लोग जो मठ का लाइव दर्शन आपने जो मंदिर का तपरत्न योगराजेंद्र शिवाचार्य जी ने जो काम किए उनका सभी का जो साक्षात एक लाइव दृश्य आपके सामने अभी अपना जो ट्रस्ट का संयोजकों ने रखे हुए आप सभी ने दर्शन लिए। और इस कार्यक्रम मुख्य केंद्र बिंदु जिनका आशीर्वाद से आप सभी लोग इस कार्यक्रम का सुन रहे हैं वो है ज्ञान सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्पाद जंगड़, उनका चरणारविंद अनंत दीर्घण प्रणाम करते हुए और उसके साथ साथ जो श्रीशैल पीठाधीश्वर सूर्य सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 डॉक्टर चन्नसिद्धराम पंडिताराध्य महास्वामी जी, उनका चरणारविंद अनंत दीर्घदंड प्रणपात करते हुए आज इस सोनली नगर का सोलापुर का जो कुलदैवत योगी कुल चक्रवर्ती शिवयोगी सार्वभौम सिद्धारामेश्वर, उनका जो कर्तृ समाधि को अनंत दीर्घदंड प्रणाम करते हुए आप सभी ने जो इसका माध्यम से लाइव जो आधुनिक तंत्रज्ञान का माध्यम से आप सभी लोग जो सुन रहे, आपका घर बैठे हुए जो सुन रहे माता भगिनियों, भक्त लोग व एवं प्यारे बच्चों, आपका अंतरंग में सदा विराजमान परशुव चैतन्य मूर्ति नमो नमः। आज आप सभी लोगों ने, क्योंकि पूरे संसार में मतलब पूरा प्रपंच में एक महामारी कोरोना का नाम से वो एक तांडव नृत्य खेल रहे, लेकिन उसी का जो भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा तो आपका सभी का मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तो सभी गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ सदैव है। आप लोग थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। थोड़ा जागरूक रहकर आप अपना काम में अगर व्यस्त रहेंगे तो कोई बात नहीं। आज इस जो लाइव फेसबुक लाइव का माध्यम से आप लोगों का जो अवसर, आप लोगों के पास आने का जो अवसर मुझे भी मिला है गुरुजी का आशीर्वाद से, पीठाधीश्वरों का आशीर्वाद से, अपना मठ जो अपना ब्रह्ममठ वटकी संस्था सदैव पंचचार सेवाओं में सदैव अग्रसर है। अपना गुरुजियों ने
तपोरत्न योगराजेंद्र शिवाचार्य जी ने, उनका गुरु चनवीर शिवाचार्य जी ने और गुरु परंपराओं ने पंचपीठाधीश्वरों का सदैव सेवा करते हुए आए हुए हमारा जो मठ है, जो श्रीशैल शाखीय मठ है, सूर्य सिंहासनाधीश्वर का जो शाखा है, श्रीशैल शाखीय धेनुकर्ण्य शाखीय का मठ है, उसका शाखा मठ के रूप में यहाँ अभी कार्यरत है। इसके जो आपका फेसबुक के माध्यम से थोड़ा बहुत तो मठ का दर्शन करने के लिए महेश स्वामी जी ने उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी। मैंने वो तो बताया कि पीठ का दर्शन करा लो बस हो गया, अपना क्यों। नहीं, उन्होंने बताया कि महेश्वर स्वामी जी ने उन्होंने उनका जो जावाई है, वो जो सोलापुर का जावाई है, वो यहाँ रहकर और यहाँ मठ में रहकर अपना सिर ब्रह्मठ वटगी में रहकर तपोरत्न योगराजेंद्र शिवाचार्य का शिष्य या अपना गुरुकुल में श्रीमद वीरशैव गुरुकुल में रहकर उन्होंने शिक्षण अर्जित किए हुए। उसके साथ साथ उन्होंने आगे अपना जो संसार जीवन का आगे जाकर जो पुणे में वो एक काम के लिए, मतलब काम धंधा के लिए उधर गए थे, वही रह गए। उसके साथ साथ सिर्फ काम धंधा न करते हुए, अपना पोट नहीं संभालते हुए, सभी कितना गरीब लोगों का पोट संभाल रहे हैं। अभी जो कोरोना का इस समय में घर पार न देखते हुए, अपना जो स्वतः का ख्याल न रखते हुए, कितने सारे गरीबों का उन्होंने खाना खिलाए। लगभग 4-5 हज़ार लोग, हर रोज़ 4-5 हज़ार लोगों का जो खाना, उनका जो कुछ सुविधा उन्होंने कर रहे हैं। सभी भक्त लोगों का सहयोग से, उनका जो योगदान से वो खुद आगे आके ये सब काम कर रहे हैं। क्योंकि असली जंगम का जो काम है, क्योंकि हम जंगम वाले जोड़गी लेके फिरते रहते हैं। जोड़गी में जो आया, जो भूखा है, जो कुछ तकलीफ में है, उनको बुला के उनको खिलाना एक जंगम का असली काम है। वही काम जो महेश्वर स्वामी जी ने कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सभी मठ का गुरुजियों ने, सभी अपना जो वीरशैव धर्म और हिंदू धर्म का सभी साधु संतों ने इस कार्यक्रम में, इस कोरोना का जो समय में सभी लोग आगे आकर कुछ ना कुछ समाज के लिए आगे आकर सेवा करने के लिए सभी लोग अग्रसर है और कर रहे हैं भी। और अपना जो मठ भी ऐसे काम में जो सूचन किए थे, मतलब यहाँ जिलाधिकारी जो सूचन किए थे, वो भी हम सेवा के माध्यम से या सेवा के रूप में हम स्वीकार करके सभी का जो सुविधा था, जो सभी लोगों का जो चाहिए था, उसका सभी मठ की तरफ से कर रहे हैं। और इस आज का जो हमारा वीरशैव धर्म है, आज का जो विषय मेरे लिए है कि वीरशैव धर्म के बारे में। वीरशैव धर्म ये सनातन धर्म है। बहुत सदियों सालों से इस संसार में इस धर्म का जो अनुयायी, इस धर्म का संस्थापक आदि जगत गुरु पंचाचार्यों का स्थापन करके आगे जो प्रचार वगैरह आगे उन्होंने, मतलब परंपरा ऐसे चालू करते हुए आए हुए। पहले एक अक्षर शिवाचार्य, द्विअक्षर शिवाचार्य, ऐसे पंचाक्षर शिवाचार्य का जो पंचपीठों का आज का जो पंचपीठ है, उन्हीं का नाम से, उन्हीं का जो एक स्थान से लिंगों से आविर्भूत होकर, जो लिंगों से प्रकट होकर इस संसार में आकर इस वीरशैव धर्म का स्थापन और प्रचार भी किए हुए। जो पहला अपना वीरशैव धर्म कहाँ से शुरुआत हुई, इसका एक थोड़ा सा चर्चा हम लोग किया तो थोड़ा का उसके बारे में जानकारी चाहिए। क्योंकि सृष्टि का निर्माण, जो प्रपंच का पहला जो परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो परमात्मा पहला एक ही था। उन्होंने एक, क्योंकि एकाकी नारमते ऐसे बताया गया कि शास्त्रों में
आप लोग के अगर देखें तो आप लोग का एक कमरे में अगर शांत एक दिन बैठने के लिए कहेंगे तो आप चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि बैठेंगे थोड़ी देर, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद कुछ ना कुछ ढूंढते हैं आप लोग, क्योंकि कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए अगर मिले तो ठीक होगा, क्योंकि बोर हो रहे हैं। इसके वजह से आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए या कुछ ना कुछ देखने के लिए, कुछ ना कुछ सुनने के लिए अभ्यास रखते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने, शिव जी ने, उन्होंने एकाकी न रहते इस प्रपंच का, एक सृष्टि का निर्माण करने के लिए उन्होंने संकल्प लिए। उसके सृष्टि का निर्माण के लिए पहला शिव जी ने ब्रह्म को और विष्णु को प्रकट किया, मतलब ब्रह्म को और विष्णु को उन्होंने सृष्टि किया। उसके बाद जो ब्रह्म और विष्णु में दोनों प्रकट होकर उन दोनों में झगड़ा चली। झगड़ा क्या हुई? वो बोलता है कि ब्रह्म बोलता है कि विष्णु को तुम्हारा जो सृष्टि मैंने किया, नहीं ब्रह्म बोलता है कि नहीं, विष्णु बोलता है कि तुम्हारा जो सृष्टि मैंने किया, ब्रह्म को बोलता है। ऐसे दोनों में जब झगड़ा चलते रही, तब आगे जाकर एक वाणी, एक स्वर सुनाई दिए। वो स्वर ऐसे बोला कि आपका सृष्टि मैंने किया है, आपको इस प्रपंच में जाकर, इस भूलोक में जाकर एक सृष्टि का, संसार का निर्माण करने के लिए आपको एक कार्य आप लोगों को देने के लिए मैंने सृष्टि किया करके शिव जी ने प्रकट होकर जब उसका वाणी सुनाई दी, लेकिन उनका ब्रह्म और विष्णु का विश्वास नहीं हुआ। आपको नहीं, एक बार दिखाइए। उनका जब वाणी सुनाई दिए तो उनका विश्वास नहीं हो, तो सब पूछे, विनंती की, तब आगे आके शिव जी ने प्रकट होकर बोले कि आप दोनों का सृष्टि मैंने किए हुए, आप सभी दोनों का एक काम देता हूँ कि एक सृष्टि का निर्माण करना है, सृष्टि का जो पालन करना है, क्योंकि ये प्रलय करता है। उन्होंने ब्रह्म जी को सृष्टि निर्माण करने के लिए उन्हें एक आदेश दिया, लेकिन आगे जाकर ब्रह्म एक मंत्र शक्ति से सृष्टि का निर्माण करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता। आगे जाकर नहीं हो पाता है तो शिव जी के पास जाता है कि मुझसे नहीं हो रही है, आप एक कुछ ना कुछ मुझे एक बोधना करिए, ये सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। जब उनका ब्रह्म जी ने शिव जी से पूछा, तो परमात्मा से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है करके एक नमूना, जो मॉडल जो बोलते हैं आजकल, कुछ ना कुछ करने हैं तो बच्चे लोग बोलते हैं एक नमूना दिखाइए सर। जैसे नमूने के रूप में, जैसे एक मॉडल के रूप में इस सृष्टि का पहला जो निर्माण शिव जी ने शिव गणों का रचाया, शिव गणों का सृष्टि किया। तब आगे जाकर ब्रह्म जी ने सृष्टि कैसे निर्माण करना है शिव जी से बोध लेकर आगे इस प्रपंच का जो सृष्टि ब्रह्म जी ने आगे जाकर की। क्योंकि जो शिव जी से जो सृष्टि हुई, शिवगण का मूल, मतलब अपना जो वीरशैव धर्म का मूल, वीर, नंदी, ऋषभ, स्कंद, ये जो पंच गोत्र है, वीर, नंदी, ऋषभ, स्कंद, मुक्तगुच्छ, जो पंच गोत्र है, पंच गोत्रों का, गोत्र पुरुषों का, जो आगे जाकर शिव जी ने एक आदेश दिया कि आप लोग जो भूलोक में जाइए, अपना जो वीरशैव धर्म का जो प्रचार करिए, विश्व दर्शन का जो संस्थापन करिए करके उनको जो आदेश दिया, शिव जी का आदेश के अनुसार जो अपना पंच गोत्राधीश्वर या इस भूमि में प्रकट होकर जो अपना एक एक
ज्योतिर्लिंग का माध्यम से एक एक ज्योतिर्लिंग में से इस भूलोक में प्रकट हुए। उसके बाद आगे जो वीरशैव धर्म का स्थापना की, आगे जो रेणुक शिवाचार्य जी ने, रेणुक भगवत्पादा जी ने जो अगस्त महाराज का उपलक्ष्य में रखते हुए उनको लेकर एक वीरशैव धर्म का उपदेश किया। आगे जो कुछ भी है वीरशैव धर्म में, आप लोग जो गुरु लिंग जंगम ये सब शतस्थल का पंचाचार्य का ये जो आचरण है, उन्होंने अपना अगस्त महाराज के उपलक्ष्य में रखते हुए ये जो सुनाया। उसके बाद आगे जाकर इसका ऐसे परंपरा, मतलब अपना परंपरा जो है शिव जी से चली हुई। आगे आप लोग सुनते होंगे, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप मंदिर में जाएंगे तो आप लोगों का एक ही विचारता है कि आपका गोत्र कौन सा है। क्योंकि एक अर्चना करने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए जाए तो आचार्य लोग, जो अर्चक लोग रहते हैं, वो पूछते हैं कि आपका गोत्र कौन सी है। वो अपना गोत्र वहाँ, लेकिन ये जो सारे प्रपंच में जो अपना हिंदुस्तान या अलग देशों में अपना जो लोग है, उनका एक ही गोत्र, अपना अलग अलग एक गोत्र बताते, एक ऋषिमुनियों का नाम बताते, भारद्वाज, विश्वामित्र, कश्यप, ऐसे अनेक सारे जो ऋषिमुनियों का नाम है वो बताते हैं। लेकिन अपना जो गोत्र है वीर, नंदी, ऋषभ, स्कंद, ये सब अपना जो पंच गोत्र है वो पंच गोत्रों का नाम बताते हैं। क्योंकि अपना गोत्र ऋषिमुनियों का नाम से नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पता चल देता है कि हमारा जो सृष्टि का निर्माण जो शिव जी का माध्यम से इस वीरशैव धर्म का निर्माण हुए। आगे जाकर इस संसार में जो पशु पक्षियों का निर्माण शिव जी ने किए, वो सब एक एक जो उन्होंने सृष्टि निर्माण करते हुए सृष्टि का पालन को भी निर्माण किया और जीव जंतु को भी निर्माण किया, वो आगे जाकर उसके एक आयु भी दिए। अपना एक प्राणी को, सभी एक प्राणी पक्षियों को एक एक अलग अलग आयु दे। जो भगवान ने परमात्मा ने जो आयु दी, वो सभी प्राणियों का एक समान आयु दी। पहले जो आयु देते हुए सभी प्राणी पक्षियों का पहला तो समान आयु एक 20 साल का दिए। पहले ये 20 साल का दिए तो सभी प्राणी पक्षी पहले तो स्वीकार किए। उसके बाद जब जीवन चलो हुई, उसके बाद देखा तो 20 साल ये कमी हो रही। ऐसे करते हुए आगे जाकर सभी प्राणी पक्षी शिव के सानिध्य में जाते, शिव जी का सानिध्य में जाकर एक प्रार्थना करते हुए ये सभी प्राणी पक्षी एक प्रार्थना करते। वो बोलते हैं कि ये 20 साल बहुत कमी है, आप इससे भी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा के देने के लिए सभी विनंती करते हैं। प्राणी पक्षी सभी, मनुष्य जाति या पक्षी जाति सभी जाकर जो शिव जी के सामने विनंती करते हैं, भोलेनाथ जी ठीक है, आपके लिए और 20 साल और बढ़ा के दूंगा करके एक आशीर्वाद देते हुए सभी प्राणी पक्षियों का 20 साल बढ़ा तो 40 साल हुआ। ऐसे एक आयु ने सभी प्राणी पक्षियों का एक समान आयु 40 साल, ये सभी शिव जी ने सभी को एक वरदान के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से सभी को आयुष दिए। उसके बाद आगे जाकर एक दृष्टांत के रूप में आपको समझाएंगे तो अच्छे तरह से आप समझ लेंगे। ऐसे में कि एक दृष्टांत के रूप में अगर हम लोग देखें तो आगे सभी प्राणी पक्षी अपना अपना जो 40 साल सभी का जो सम्मान शिव जी ने दिए हुए थे, वो समान आयु को लेकर सभी प्राणी पक्षी अपना अपना काम में व्यस्त रहे। उसके बाद अपना अपना एक एक प्राणी के एक अलग अलग काम रहते, उस काम में थोड़ा सभी संतुष्ट हुए, थोड़ा ऐसा है कि असंतुष्ट भी हुए। आगे जाकर वो सभी प्राणी
अपना अपना आयु भी, थोड़े लोगों को वो 40 साल वजन भी हुई, थोड़ा प्राणी पक्षियों को वजन भी हुई, मतलब ज़्यादा हुई। आगे जाकर शिव जी के पास जाकर अपने अपने मतलब सभी का सामूहिक रूप में नहीं गए, अपने अपने जाकर अपना आयु कमी कमी करके जो फिर भूलोक में आए। उसके बाद जब थोड़ा और मेन जो प्राणी पक्षी है, जो मेन प्राणी थोड़ा है, पक्षी भी है, वो सभी फिर ये उन्होंने भी सोचा है कि अपना भी 40 उम्र ज़्यादा हो रहे, इसमें कमी करके आएंगे क्योंकि काम ज़्यादा हो रहे, थोड़ा ये जल्दी मुक्ति पाने के लिए थोड़ा आयु कमी करके आएंगे करके थोड़ा प्राणी पक्षी मतलब एक किमान मतलब एक संगठन, एक ग्रुप बोलते हैं ना, ऐसे एक प्राणी एक पक्षी दो प्राणी जा रहे। वो एक है कि गाढव, वही डांकी और कुत्ता और उसके साथ साथ उल्लू, ये तीनों मिलकर जा रहे थे। ऐसे उसका मतलब शिव जी के पास जा रहे थे। ऐसे जाते जाते मार्ग में मनुष्य ने, मानव प्राणी ने, मतलब हम मनुष्य लोग उनको देखा, ये क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं। मनुष्य जी ने पूछा, मतलब मानव ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। वो के बोले कि शिव जी के पास जा रहे हैं। क्यों? ऐसे ऐसे अपना आयु ज़्यादा हो रहे, इसमें कमी करने के लिए, इसमें थोड़ा कमी कुछ डिस्काउंट करने के लिए हम लोग शिव जी के पास जा रहे हैं। ठीक है करके मनुष्य भी उस प्राणी के साथ आगे उनके साथ शिव जी के सानिध्य में गए, मतलब जो कैलाश में गए। जो कैलाश में जाकर आगे जो पूछे कि सभी प्राणी पक्षी आगे के जो गए थे, वो सबसे लास्ट में मनुष्य खड़ा हुआ था। सभी प्राणी जो गाढव है और कुत्ता है और उसके बाद जो उल्लू है, वो सभी अपना अपना जो समस्या शिव जी के सामने रखे और बोले कि ये आयु थोड़ा ज़्यादा हो रहे, हम लोग उतना आयु सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि त्रास ज़्यादा हो रहे, हमको थोड़ा आयु कमी कर लो। वो एक प्रार्थना उन्होंने, मतलब वो जो प्राणियों ने रखे। ठीक है, क्या हो रहा है। जो पहला गाढव का प्रश्न था, प्रश्न ने पूछा कि शिव जी ने पूछा, तेरे को क्या हो रहा है, आयु क्यों ज़्यादा हो रहे है, ऐसा लग रहे हैं आप लोग। वो बोले कि नहीं, मेरा का काम तो, गाढव का क्या काम क्या है आपको पता है, वजन उठाना। 20 साल पहले जो दिया था वही मुझे लिए पर्याप्त है। 40 साल इतना वजन, ये जो सभी वजन उठाना मेरे से नहीं हो रहे, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहे है, इसलिए करके एक 20 साल मेरे लिए कमी कर दो, पहले जो दिए थे वही पर्याप्त है। ठीक है, गुरु शिव जी ने बोले कि ठीक है, तुम्हारे एक 20 साल हटा दूंगा। आगे दूसरा जो पाली आई, उसका किसका, कुत्ता का, जो कुत्ता वो बोला कि मेरा भी 20 साल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 40 साल मतलब ज़्यादा हो रहा है, मेरा भी थोड़ा कमी कर लो, क्योंकि रात भर जगाना पड़ता है, मालिक को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, उनका जो कुछ समस्या थे वो सब समस्या शिव जी के सामने रखे। ठीक है, तेरा भी आयु कम कर लिया। आगे आके उल्लू का बारी आई। उल्लू बोले कि नहीं, मेरा भी 20 साल कमी करना है। क्यों? वो बोले कि मेरे को तो दिन में आँख नहीं दिखती, मेरे को रात में दिखती है, रात में सब सोए रहते हैं, मेरे के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलते, रात में अकेला भटकना पड़ता है, इसलिए मेरे के लिए 20 साल कमी कर लो। शिव जी बोले ठीक है, 20 साल आपका कमी किया। आगे जो दो पाली आई, किसको, मनुष्य का। ये मनुष्य आशावादी है, ये मनुष्य को कितनी देगा, कितना भी देगा तो भी कमी है। मनुष्य ने ठीक है, परमात्मा जी ने पूछा कि आपका क्या समस्या है। मनुष्य बोले कि मेरे को आयु कमी हो रही है, मेरे को और बढ़ा के देना है। क्या क्या बात है? वो बोले कि मेरा 20 साल तो ऐसे ही पढ़ाई लिखाई में 20-25 साल गुजर जाता है, उसके बाद घर वाले ने आगे जाकर शादी वादी करा देते, उसके बाद जो मियाँ बीवी के साथ या बच्चों को पैदा करना, ये सब में
40 साल मिट जाता है, उसके बाद बचे क्या? 40 साल में अपना जीवन खत्म हो रहा है, इसलिए मेरे लिए और बढ़ा के देना है, और बढ़ा के देने के लिए आपको एक विनंती रखता हूँ। वो बोले कि ठीक है, कितना साल चाहिए? जो जो अभी गाढ़व, कुत्ता, जो उल्लू, उनका जो जो 20 साल कटा हुआ है, वो 20 साल सभी, मतलब 60 साल और मुझे दे दो, 60 साल मिला के मुझे दे दो करके जब मनुष्य ने शिव जी के सामने एक विनंती रखी, ठीक है, शिव जी ने बोले ठीक है, इसका पश्चाताप आप आगे आप लोगों का मतलब जो जीवन में भोगना पड़ेगा, ठीक है, देख लेंगे, पहला दे दो। ठीक, ऐसे करके मनुष्य ने एक 100 साल लेकर नीचे आए, बहुत संतुष्ट, बहुत खुशी थे, मनुष्य सब बहुत खुश होकर सभी को मतलब 100 साल 100 साल मिले हुए, ठीक है, कि अपना जीवन कर रहे थे। ऐसे जैसे बोला कि अभी उसके साथ साथ जब जो भी सभी प्राणी पक्षियों का जो प्रकट, मतलब जो भी प्राणी पक्षियों का जो निर्माण शिवजी ने किए, उसके साथ साथ उसका आयु भी दिए, उसके साथ साथ एक काम भी दिए रहते। तुम्हारा एक प्रपंच में जो जन्म लिया तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, स्वार्थ नहीं, परमार्थ के रूप में काम करेंगे तो ये आयु आपके लिए वरदान होगा, नहीं तो आपका असका जो भोगना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाकर मनुष्य का काम को आपको पता है, बाल्यावस्था में जो पढ़ने के लिए सब इधर उधर, मतलब शिशुअवस्था का सब खत्म होता है, उसका पहले यौवन युवावस्था में आते हैं, युवावस्था में आकर जो शादी वादी करने के बाद जो बच्चों का पैदा करने के बाद मतलब 40 साल ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बीत जाता है। उसके बाद उसका एक दिमाग में चलता रहता है, आगे 40 साल तो हो गया और बच्चे कितना, रिटायरमेंट के लिए कितना बचा रहता है। जो अभी गवर्नमेंट का जॉब में रहेंगे तो रिटायरमेंट के लिए आगे अभी 20 साल बचा रहता है, क्योंकि अभी बच्चे बड़े होंगे, इसके बड़े होने के बाद इसके लिए शादी वादी ये सब खर्चा वगैरह ज़्यादा है, इसलिए करके सोचता है कि क्या सोचता है, नहीं अच्छे तरह से कमा के रखना है, कमाना चालू कर देता है। कमाना ऐसा चालू करता है कि दिन रात एक करके ओटी करके ज़्यादा टाइम लेकर अपना अपना काम में मग्न रहता है। उनका एक ही लक्ष्य रहता है, पैसे कमाओ, कैसे करके पैसे कमाना है, और मेरा बेटी के नाम से करना है FD वगैरह, मेरा बेटा के नाम से FD करना है, मेरा बीबी के नाम से करना है, मेरा पिताजी के नाम से ऐसा करना है। ये सब उनका एक दिमाग में चलता रहता है कि सब मतलब काम में इतना व्यस्त रहता है कि कोई बुलाएगा तो ये ओ भाई इधर आ जाओ, नहीं मेरा काम ज़्यादा है, मैं नहीं आ ना सकता हूँ करके अपने अपने काम में मग्न रहता है। इसलिए कन्नड़ में एक कथा है, यंग दुಡ್ಲಾಗ್ತಾನೆ कत्ते दुड़दन दुಡ್ಲಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मतलब एक गाढ़व सर का वो काम कर रहा है, वो क्या इंसान सर का काम नहीं कर रहा है, वो गाढ़व सर का कर रहा है। मतलब इससे आपको ध्यान में आना चाहिए, ये शब्द सुनेगा तो ये किसका आयु अभी मेरे लिए आए हुए, किसका आप सभी को पता है, क्योंकि शिवजी से जो प्राप्त करके आए हुए पहले एक प्राणी का, गाढ़व का, वो आपको सुनना ही पड़ता है। उसके आगे जाकर ठीक है 60 साल हो गया, अब शरीर का जो ऊर्जा है वो कमी हो गई, उसके बाद आप आगे काम नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते, तब क्या हो जाता है, अगर गवर्नमेंट में नौकरी में रहेंगे तो रिटायर दे जाते हैं 58 साल या 60 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट से 62 साल में रिटायर कर लेते हैं। रिटायर होने के बाद क्या करते हैं आप लोग, घर में बैठे रहते हैं, चुप नहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि इतना साल में जो काम किए रहते हैं, आपका जो अनुभव रहता है, वो अनुभव आपको बेटों को, आप सुन भाई को, बहू को आप बताते या बेटा को बताते या बेटी को बताते रहते, अगर नहीं सुनेंगे तो उनको ऊपर गुस्सा कर लेते हैं। तभी वो 1 दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 4 दिन सुनेंगे, बाद में वो क्या कहते हैं, स्वतः पिताजी को या बहू या मान लो आपका बेटा, वो अचानक एक शब्द ले लेते हैं, क्यों भोगते हो, कुत्ता भोगने से, कुत्ता के सर, मतलब कुत्ता के जैसे क्यों भोग रहे हो। वे कन्नड़ में कहते हैं नए उधर देंगे या कुदरता इधर,
ये शब्द आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आप किससे आयु लिए हुए? कुत्ता से। मतलब कुत्ता का एक उनका नाम तो आपका सुनना ही पड़ेगा। उसके बाद ऐसे ऐसे 20 साल बीत जाएंगे। उसके बाद आगे अपनों का स्पीकर या क्या बोलते हैं हेडलाइट वगैरह, मतलब डोली, आँख और कान वगैरह सुनना बंद कर देता है। आँख भी ज़्यादातर से नहीं दिखता रहता है। तब एक जगह पे चुपचाप बैठे रहते, तब आपका सुनना भी नहीं कमी रहती है। अगर मान लीजिए बहू कुछ कहेंगे तो भी आपको सुनने में नहीं देंगे, सुनने नहीं आएंगे। तब एक कोई ना कोई आकर, मान लीजिए खड़क बहू अगर होगा तो घर पे, वो एक सहेली कोई आके पूछेगा तो क्या हाल है, क्या है, बढ़िया है क्या, सब पूछेंगे तो वो कहेंगे ठीक है, अभी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि अपना जो सासुर या क्या बोलते हैं जो ते अभी है, वो अभी कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं सुन रहे, बैठा है उल्लू जैसा है। क्योंकि कन्नड़ में एक बोलते हैं ना, यंग कुंतन और गुई कुंतंग, वो भी हम लोगों को सुनना ही पड़ेगा। कब? जब आगे जाकर कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है, तब जाकर ऐसे जो वाक्य, मतलब किसी दूसरों से, या बेटा से मान लो, या बहू से मान लो, या दूसरों से मान लो, आप लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये आयु उसके दिए हुए। इसलिए ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। मनुष्य का आयु एक दृष्टांत के रूप में बताया कि मनुष्य का आयु ऐसे ऐसे सभी प्राणी पक्षियों से बढ़ाकर मनुष्य का आयु दिया, और 20 साल भी बढ़ाया है। 120 साल बोलते हैं कि नवग्रह के रूप से आपको 120 साल भी जीवित है। लेकिन अभी मनुष्य ज़्यादातर ज़्यादा कितना आपको पता ही, 60 या 70, 80, मान लीजिए 100, 80 अगर अभी आज का दिन में 80 साल हुआ तो मान लीजिए 100 पार कर लिया। क्योंकि आजकल का फूड भी ऐसा है, ज़्यादा आयु आप लोगों को मिले रहेंगे तो भी हम लोग उसका अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब दृष्टांत के रूप में बताया। उसका मतलब वो बात नहीं सुनना है तो ऐसे गुरुजनों का, जब कन्नड़ में बोलता है कि 60 वर्षक अरो मरो, मतलब जो साठी काटी कुछ मराठी में भी बोलते हैं। ऐसे जो 60 वर्ष होने के बाद आपको एक याद दिलाता है, ये तुम्हारा आयु ये जो 40 वर्ष के बाद ही खत्म हुआ, फिर भी आप लोग जी रहे हो। मतलब ये थोड़ा ध्यान देते हैं। अरु मरो मतलब अभी संसार का मरो कर लो, मतलब भूल जाओ, अभी गुरु का ध्यान कर लो या परमात्मा का ध्यान कर लो, इस सृष्टि का जो निर्माण किया उसका सेवा कर लो। इस संसार में जो आए हुए तुम्हारा जो जिंदगी खुद के लिए नहीं, परमार्थ के लिए अपना जीवन थोड़ा तो थोड़ा पुण्य काम कर लो। अगर पुण्य काम किया होगा तो, अगर पुण्य काम करते रहेंगे तो ये जो 3 जो प्राणियों का नाम बताया, प्राणी पक्षियों का नाम, वो सुनना नहीं पड़ेगा आप लोग। इसलिए आप लोग गुरुजनों का आशीर्वाद से ये जो भारत भूमि में आप पैदा हुए, इतना भाग्यशाली आप लोग हैं। क्योंकि कल तो एक महान जो ऐतिहासिक आप लोगों को पता है क्या हुआ, क्योंकि मोदी सरकार जो मोदी साहब की, नरेंद्र मोदी के जो सानिध्य में, मतलब जो समिति है, जो राम मंदिर का निर्माण का समिति है, वो अध्यक्ष ने जो मोदी के मतलब अपना प्रधानमंत्री को एक अवसर दिया है कि भूमि पूजन करने के लिए, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी को, और उसके बाद आप कल देखे होंगे राष्ट्रपति जी को, मतलब राज्यपाल को। आप सभी इतना भाग्यशाली है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम मंदिर का जो आपके सामने, आप आँखों के देखने के लिए जो सौभाग्य आप लोगों को मिला। क्योंकि ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, सभी सिर्फ एक प्रांत के लिए नहीं, सभी प्रांत का है, सभी प्रपंच का है। क्योंकि उनका जो आदर्श सभी अपना मान के जाना चाहिए। उसी के लिए, उसी के वास्ते कल भी बहुत एक निर्णायक आप लोगों ने देखे। ऐसे
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राम मंदिर पुनः होना चाहिए। उसके बाद अभी युवाओं को थोड़ा जागरूक होना है, क्योंकि कोरोना के बारे में थोड़ा बहुत अगर देखना है तो, सुनना है तो, अगर जानना है तो, ये कोरोना ये कोई नया बीमारी नहीं है, ये नया रोग नहीं है। जैसे हम सृष्टि में से मतलब परमात्मा से जैसे हम सृष्टि हुए, मतलब हम पैदा हुए, वैसे ही परमात्मा का एक देना है। मतलब एक शिव जी का सभी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 84 लक्ष कोटि कन्नड़ में जो बोलते हैं, ऐसे मूंगी चीटी वगैरह लेकर 1,84 कोटि इतना जीवों में से एक जीवी है कोरोना, एक वायरस है। वो एक अपना जैसे आयु है वैसे भी नहीं उनको, वो वायरस को वो भी नहीं, एक आधार डिफेंड, एक जीवी का आधार लेके चलता है। उसको क्यों डरना है? उसके लिए आप मत डरिए, क्योंकि आप थोड़ा जागरूक रहना है, इतना तो है। अगर जागरूक रहकर जैसे शासन ने जो नियम लागू किए उसका नियम का पालन अवश्य करना है। जो बाहर आप लोग गए तो मास्क वगैरह अवश्य पहनना है, क्योंकि आपका रक्षण, आपके परिवार का रक्षण आप खुद ही करना है। इसलिए आप लोग एक वायरस मैं बोलता है कि पहले आया हुआ था, ये वायरस पहले आए हुए हैं, क्योंकि इसका नाम तब कोविड-19 नहीं था, तब अलग नाम था इसका, कंठ रोग बोलते हैं। कंठ रोग नाम से पहले 100 साल पहले लगभग इधर उधर तब आया हुआ था। तब तो इतना डेवलप नहीं था। अब युग मतलब अब जनरेशन इतना डेवलप है, मतलब इतना जो साइंस इतना डेवलप हुआ, अभी तब डेवलप नहीं था, तब इतना औषध भी नहीं था। अब तो कितना अभी भी नहीं, उतना औषध नहीं मिल पा रहा है। पहले तो इतना भी नहीं था, तब भी लोग मतलब वो बचे हुए करके हम लोग एक, क्योंकि आप लोग डरना मना है आप लोगों को, इसलिए जागरूक रहना है। वो पहले आया हुआ था घर पे, जो घर का रसोई मतलब रसोई घर की आपका वैद्यशाला है, इसलिए पहले पूर्वजों ने आयुर्वेद में जो बताया उसका सेवन किए। जो काढ़ा वाड़ा वगैरह, काली मिर्ची का मान लो या नींबू का मान लो, ये सब लेना है, क्योंकि ये सब अपना ह्यूमिडिटी जो पावर है, रोगराई शक्ति है, इसको ज़्यादा बढ़ाता है। इसके वास्ते वो वायरस कुछ नहीं कर पाता है, जिसका शरीर में आके गएगा तो भी उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग एक सतर्क रहकर आप लोगों का जीवन बचा के जाना है। उस वायरस के साथ ही हमको जीना है अभी, जब तक तब तक इसका मतलब ये अभी दवा या अंग्रेजी का दवा मान लो या होम्योपैथी का या एलोपैथी का दवा नहीं मिलती है, तब तक उसके साथ ही जीना पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए आप लोग घर पे कैसे सतर्क रहना है, मैं तो कहता हूँ कि पहले का जीवन कैसे था, अब का जीवन कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है, आपका रहना कैसा है, पहला कैसे था। पहले के जैसे रहेंगे तो इस छोटा बीमारी कुछ नहीं करता था। अब अपना बदल गया, अपना खाना पकाने का तरीका बदल गया और खाने का तरीका बदल गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक शास्त्र का आधार रखते हुए, एक आयुर्वेदिक शास्त्र या मान लो एक रिपोर्ट या लैब रिपोर्ट आधार रखते हुए मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आजकल जो माता भगिनी है उनके लिए जो रसोई कैसे रखना है, रसोई घर कैसे रखना है, ये अवश्य आप लोग पालन करना ही। आप लोगों का पूरा जीवन जीना है तो आप लोग पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादातर जल्दी से जल्दी आप लोगों का रसोई घर का थोड़ा बदलना पड़ेगा। आप लोग सोचे होंगे गुरुजी क्या बोल रहे हैं, माता भगिनी सोच रहे होंगे कि नहीं गुरुजी अभी क्या बोल रहे हैं। नहीं, आप लोगों का जो शास्त्र का आधार रखते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग आजकल जो बर्तन यूज़ करते हैं, आजकल जो बर्तन कौन सा कुकर, वो कुकर वगैरह उसका थोड़ा सा बंद करना है। नहीं टाइम नहीं मिलेंगे क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों का एक उदाहरण देता हूँ कि मतलब कुकर आप यूज़ कर सकते कैसे। कुकर आप लोग जहाँ कहीं साउथ इंडिया में मतलब दक्षिण भारत में आप गए होगा तो वहाँ एक प्रसाद देते हैं मंदिरों में, या बालाजी मंदिर मान लो
या पूरी जगन्नाथ का मंदिर मान लो उड़ीसा में, वहाँ एक प्रसाद लोगों के लिए प्रसाद बनाते हैं, या आप पूरी जगन्नाथ के मंदिर के मतलब जगन्नाथ जी के लिए या मान लो बालाजी के लिए जो प्रसाद बनाते हैं, वहाँ जो रसोई घर है वहाँ एक पूरी जगन्नाथ का अभी भी मिट्टी का बर्तन ही यूज़ करते हैं। मिट्टी का बर्तन में ही उसका जो खाना वगैरह पकाते हैं, उसका नैवेद्य जो रहता है उसको पकाते हैं, भोग चढ़ाने के लिए जो खाना पकाना है उसमें पकाते हैं और उसी प्रसाद के रूप में लोगों को देते हैं। ऐसे ही बालाजी का मंदिर में भी वहाँ भी एक पितले का बर्तन में खाना पकाते हैं। अभी भी दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का घर में पितले का बर्तन ही, पितली मान लो या कंस मान लो, यही बर्तन यूज़ करते हैं और आगे जाकर मिट्टी का बर्तन भी यूज़ करते हैं। ये क्यों करना है, ये क्यों यूज़ करना है? ये कोरोना जैसे महामारी इतना महामारी नहीं बनती थी अगर वो यूज़ किया होगा तो। क्योंकि आप लोग जो मार्केट में अभी जो मिल रहे वस्तु मतलब सामान, जो खाना खाद्य का सामान, धान्य वगैरह, ये सब प्योर नहीं है। ये सब जवारी मतलब नाटी जो बोलते हैं, नाटी नहीं मिल रहे, सभी हाइब्रिड है। मतलब हाइब्रिड मतलब जो डीएनए चेंज करके जो बनाते हैं। अभी मनुष्य भी हाइब्रिड हो रहे हैं, वो बात अलग है। कि आपका एक ही मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जवारी पदार्थ नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, क्या करना है? अभी जो मिल रहा है उसी को अच्छा तरह से पका के खाना है। उसमें जितना है, मान लो 60% या 40%, मतलब हाइब्रिड मतलब उतना ही है, मान लो ज़्यादा 60%, 60-70, क्योंकि 100% नहीं मिलते उसमें। ये जो न्यूट्रिशन जो रहते हैं, न्यूट्रिशन इस शरीर के लिए गरज है, इस शरीर के लिए अवश्य चाहिए। वो न्यूट्रिशन आप लोग जो हाइब्रिड पदार्थ में कमी रहती है, रोगराई शक्ति उसमें कमी रहती है, इसलिए वो अलग अलग औषध उसको मारना पड़ता है। आगे जाकर आप लोग बाजार से लेके आएंगे, लेके आने के बाद आप लोग जो पकाते हैं, वो पकाते वक्त में जो बर्तन यूज़ करते हैं उसी के वास्ते उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो रहता है वो पूर्ण कमी हो जाता है। कैसे कमी हो जाता है? एक उदाहरण है, लेकिन अभी मेरा मोबाइल में दिखा सकता था आपको, लेकिन वो एक आप लोग ढूंढ सकते हो। एक दीक्षित ने बताया कि एक लैब रिपोर्ट में आप अगर चाहे तो आप खुद ही लैब रिपोर्ट मतलब आपका खाना ले जाके लैब में रिपोर्ट ले सकते हो। एक बार बर्तन, मिट्टी का बर्तन यूज़ करके बनाओ, उसके बाद आपका जो कुकर है, स्टील का मान लो या सिल्वर का मान लो, कौन सा भी आपका कुकर है, उसमें बना के आप लैब रिपोर्ट स्वतः मतलब जो साक्षात आप रिपोर्ट ले सकते हो। इसलिए आप लोगों का एक आदेश नहीं है, विनंती है, आप लोगों का जीवन अच्छा रहना, ये अपना जो प्रार्थना रहती है भगवान के पास। इसलिए आप लोग ज़्यादा हो सके तो बर्तन जो कंस का भी मिल रहा है, कुकर ज़्यादा यूज़ मत करना है। तब भी आपका टाइम बचाने के लिए कुकर यूज़ करें तो वो भी मिल रहे हैं, क्योंकि मैं उपयोग करता हूँ इसलिए मैं बताता हूँ। जो बताता हूँ उसका पालन करते हुए आपको बताता रहता हूँ। मतलब कभी भी मैं जहाँ बताता हूँ वैसे आप लोग अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो पूर्ण मतलब कितना परसेंट मैं बताऊँ, मिट्टी के बर्तन में अगर खाना पकाए तो 100% न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। उसके बाद कंस में पकाएंगे तो 97% कुछ लगभग मिलेंगे। उसके बाद जो पितल का बर्तन में अगर पकाएंगे तो 93% न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। वही कुकर आपको जो स्टील या जो सिल्वर का रहते हैं जर्मनी, उसमें अगर पकाएगा तो आपका 7% मिलेंगे, सिर्फ 7%। पूर्ण वहाँ मर जाता है, क्योंकि वही जो न्यूट्रिशन है उस शरीर के लिए चाहिए, इसलिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए रोगराई ज़्यादा हो रहे हैं। अपने पास जो रोगराई शक्ति कमी हो रहे हैं, जो खाना मिल रहा है वो भी पकाने के बाद पूरा नहीं मिल रहे हैं। इसलिए आप लोग ये कर सकते हो। मतलब आप लोगों का जो युवा लोग है, अगर वो थोड़ा सा ध्यान रहेंगे तो इससे मतलब इस भारत को आप लोग बचा सकते हो। वो कैसे? अगर मान लीजिए अभी जो पुणे नगरी में आप निवास कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बताऊं कि आज युवक लोग जाके अपना नौकरी छोड़कर जाके खेती में काम करने के लिए बताएंगे तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी क्या करें, अगर
खेत में कितना कमा सकते हैं, नहीं है, वो सब आपका जो समस्या है वो बता देंगे। लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं, जो शेतकारी है, किसान लोग हैं, उनका सहकार तो आप कर सकते हो। आप मान लीजिए आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, एक अपार्टमेंट में बहुत सारे कुटुंब वहाँ रहते हैं, वो सभी कुटुंबों के एकजुट होकर एक मीटिंग लेकर आपका जो अपार्टमेंट के लिए, मतलब 2-3 अपार्टमेंट जहाँ नज़दीक में, वहाँ क्या क्या ज़रूरत है, आप में से कोई एक आकर, मतलब समाज सेवा के रूप में आप में से कोई एक आकर अच्छा खाना अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि आप जो कमा रहे हो, ऐसे बीमारी आ रही है कि आपको जो कमाए हुए पैसा सभी हॉस्पिटल में जा रहा है। आपके बच्चों को क्या बचा के रखेंगे? आगे जाकर आपका जो कमाया हुआ पैसा सभी हॉस्पिटल में जाएंगे। इसलिए आप लोग एक थोड़ा बहुत मेहनत, मतलब एक सहकार देना है। एक शेतकारी को अच्छे, मतलब थोड़ा शेतकारी को गांव में जाकर आप एक छुट्टी के दिन में वहाँ जाकर एक शेतकारी को बताना है, हमको विषमुक्त आहार चाहिए, आप देने के लिए कौन तैयार है, आगे आइए, हम लेने के लिए तैयार है। जितना थोड़ा ज़्यादा, मतलब जो ऑर्गेनिक फूड जो बोलते हैं उसका थोड़ा रेट ज़्यादा रहता है। आप लोग अगर मान ली थोड़ा बहुत जहाँ पुणे में या सोलापुर वाले या कहीं भी जहाँ थोड़ा सा सहकार आप लोग कर सकते हो। जो अभी, क्योंकि ये कि आप लोग अभी कोरोना में, मतलब कोरोना का जो लॉकडाउन में आप लोग घर बैठे बैठे पूर्ण आपका जीवन, मतलब इतना बोर हो गए कि थोड़े लोग शहर छोड़कर अपना गांव कहाँ है करके गांव ढूंढकर खेती कहाँ है कभी नहीं गए होंगे, कभी जाके खेती में भी काम किए हुए लोग भी है, मतलब दिखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया में भी दिख रहा है। ऐसे आप लोग आपका काम करते करते एक दिन छुट्टी का दिन आप नज़दीक में आपका अगर खेती वगैरह होगा तो आप ले जाकर आप खुद उसका गाइडेंसन देके, मतलब किसान को एक गाइडेंस देके आप लोग खाना, मतलब ये खाना जो धान्य, वो धान्य पकाने के लिए उसको कहेंगे तो अवश्य वो पकाएंगे, क्योंकि उनका मार्केट नहीं मिल रहा है। क्योंकि शेतकारी को जो वो मेहनत करके जो उगाते उसका अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दलाली लोग बीच में उनका पूर्ण पेट पे मार रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत, मतलब आप में से कोई युवक लोग आगे आकर कोई, या उनका जो कुछ भी काम है, मतलब लोगों को कैसे उनका भरोसा दिलाना है, जो कुछ वो काम करता है वो फोटो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे अभी फेसबुक के माध्यम से उनका सभी को अगर पहुंचाएगा तो विश्वास बैठेगा। विश्वास बैठने के बाद अच्छा खाना आपको मिल सकेंगे। इसलिए विषमुक्त आहार, मतलब केमिकल मुक्त आहार जो आप लोग खाएंगे तो उसके लिए आगे उदाहरण बहुत है, मैं बता सकता था लेकिन टाइम कमी है। इसके वास्ते मेरे को थोड़े में आपका थोड़ा एक संदेश देना था, एक मैसेज देना था। इसलिए आप लोग सभी, मतलब जो सॉफ्टवेयर रंग में जो काम कर रही है वो लोग, वो अभी आगे आकर, मतलब मैं बताता हूँ कि आंध्र में या तेलंगाना में सॉफ्टवेयर रंग को बाय करके शेतकारी, मतलब खेती में आ रहे हैं। ऐसे एक बहुत सारे, मतलब नाम नहीं बता सकता, आप देखा तो यूट्यूब में भी देख सकते हो, वीडियो है उनका, वो काम कर रहे भी, उसमें बहुत मुनाफा भी कमा रहे हैं। उनका एक आइडिया, वो आइडिया यूज़ करके वो अपना खेती में जाकर भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे हैं। एक सॉफ्टवेयर रंग में काम करते करते ही उनका लगभग पैकेज 12 लाख कुछ है साल का। वो करते करते भी अपना खेती में जाकर, उदाहरण है आप, मतलब साक्षात एक उदाहरण है, आप लोग जाके भी देख सकते हो। आंध्र में, मतलब रायलसीमा जो अनंतपुर जिला है, वहाँ एक युवा शेतकारी जो सॉफ्टवेयर रंग में काम करते करते, जो छुट्टी में एक दिन, हफ्ता में एक दिन खेती में जाकर उनको गाइडेंस देकर वो 3 एकड़ जो ज़मीन में खेती किए, ऐसे खेती किए कि 3 एकड़ में लगभग 1 एकड़ को 30 लाख के हिसाब से मुनाफा कमाया। वो कौन सा, मतलब फ्रूट्स का, जो खजूरों बोलते हैं, वहाँ पानी नहीं, ज़्यादा बारिश नहीं बरसती, इसलिए वहाँ जाकर उन्होंने ऐसे एक काम किए। आप लोग
अगर युवा लोग अगर चाहे तो मतलब इस देश को, इसका देश का जो भविष्य आप बदल सकते हो, आपका सोचना चाहिए। यही मेरा एक विनंती है। और उसके बाद सरकार जो अभी शिक्षण का मतलब इस शिक्षण का जो पद्धति था, एक परंपरा था, उसको हटा के जो नया शिक्षण जो सुविधा मतलब नया शिक्षण का पाठ्य पुस्तक जो लेके आ रहे हैं, बहुत इतना अच्छा है कि उससे मैं जो अभी बता रहा हूँ वो अपने आप शिक्षण में आ जाएंगे। क्योंकि देशी शिक्षण गरज है जो उसका कौशल्य बढ़ाना है, क्योंकि कौशल के माध्यम से देश का प्रगति भी हो सकती है, क्योंकि बजट जो जीडीपी है वो भी बढ़ सकती है। इसलिए आप सभी लोग जो आगे जो नया शिक्षण है उसका एक बहुत आदर सम्मान से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार जी ने बहुत एक अच्छा एक भविष्य के लिए, भारत का भविष्य के लिए अच्छे एक नियम मतलब अच्छे एक स्कीम उन्होंने लेके आए है बच्चों के लिए। इतना विचारधारा रखते हुए मैं एक बीच में ऐसे सोशल मीडिया में एक छोड़ा था, मतलब एक कानून के बारे में ऐसे एक देखते देखते यूट्यूब में जो अपना पुणे में एक रहता है, अपने एक शिष्य है विजय कोटानी, मतलब बेरोजगार वकील वृत्ति कर रहे अभी, उनके बारे में मैं एक मतलब एक शिष्य था, मतलब शिष्य भी है, उनके लिए एक मैसेज छोड़ा। वो थोड़ा दूसरा भाषा में था, उनको समझ में आया कि नहीं पता नहीं, मैं बाद में भी फ़ोन नहीं किया उनको कि एक उसमें एक सिखाया कि एक डायरेक्टर ने, तमिल डायरेक्टर ने एक तेलुगु में कन्वर्ट होकर फिल्म है दमुंटे कास्को ऐसे कुछ नाम है, आप लोग आप देख सकते हो, जो तेलुगु जानता है वो देख सकता है, पता नहीं। उसमें एक डायरेक्टर की एक ही थिंकिंग रखा है, एक ही सोचो एक समाज को बदलना कैसे है। मतलब आजकल जो हम लोग जी रहे, इस समाज में जी रहे, सामान्य कानून जो कायदा है उसका जानना जरूरी है। इसलिए उसमें बहुत सारे मतलब दिखाया सामान्य कानून क्या है, सामान्य नियम क्या है, ये सब उन्होंने दिखाया एक डायरेक्टर ने। उससे इतना इम्प्रेस होता है कि अभी वही शिक्षण मतलब कानून के बारे में अभी शिक्षण में मतलब ये पाठ्य पुस्तक में आ रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ कि क्योंकि आजकल आप देखते होंगे पुणे में थोड़ा कमी है, सोलापुर में तो उधर ज़्यादा है। ट्रैफिक पुलिस कितना तंग करते हैं, उनका ड्यूटी छोड़ देते कुछ ना उसको करते बैठते हैं उसको, क्योंकि हमको नियम पता नहीं, वो हम हमारे ऊपर चार्जशीट करते हैं। चार्जशीट के नाम से कितना लौटाता है आपको पता है, क्योंकि पुलिस के बारे में क्योंकि मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, फिर भी एक बताना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक हम लोग कानून के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ऐसे बहुत सारे लुटेरे आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों का सामान्य कानून ज्ञान जानना जरूरी है। अगर हो सकते हो तो अभी उसी के बारे में अभी शिक्षण में आ रहे हैं, उसका बहुत अच्छी तरह से आप बच्चों का कानूनी ज्ञान और व्यवसायिक ज्ञान ये सब उसमें आ जाएंगे, और बहुत सारे हैं। ये सब आप लोगों का एक सौभाग्य, अभी जो युवा पीढ़ी है उनके एक सौभाग्य, ऐसे शिक्षण उनको सीखने के लिए मिल रहे हैं, हम लोगों को नहीं है। अभी जो सीख रहे अभी सीख के जो बड़े हुए उनके लिए नहीं है, आगे जो पिक्चर है बहुत अच्छे होंगे। इसके वजह से भारत के जो फाउंडेशन है बहुत मजबूत बैठेंगे, इसलिए आगे भारत का जो प्रगति आपो आप हो जाएगी। इधर आगे सोमवार श्री श्री 1008 जगत गुरु चन्नसिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी सोमवार 10 तारीख आने वाले सोमवार उस 7 ते लेकर 8 सुबह सकाळी इष्टलिंग महापूजा, संध्याकाळी 7 ते 8 आशीर्वचन होणार आहे असून तरी सर्व सद्भक्तांनी त्यांचा लाभ घ्यावे। क्योंकि अपने एक सौभाग्य एक विषय कि अपना जो पंचपीठाधीश्वरों का आशीर्वाद मिलेंगे तो बहुत बढ़िया थी। महेश स्वामी जी ने पंचपीठों का जो उत्सव पुणे में बहुत भारी तरह से उन्होंने किए थे। आगे जाकर आगे पंचपीठों का नहीं हो पा रहा है, वो एक विनंती शिव जी के चरण में या पंचाधीश्वरों के चरण में विनंती, फिर ऐसे एक मौका, ऐसे एक सुविधा, मतलब ऐसे एक महान क्षण हम लोगों को मिलेगा कि नहीं पता नहीं, अगर हो सकता तो मिल भी सकता, क्योंकि अगर सभी लोग भक्त लोगों का इच्छा पूरा करना गुरु का काम है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलेंगे तो बहुत बढ़िया है। ऐसे एक अभी फेसबुक के माध्यम से
दोनों जगत गुरु जी का आशीर्वाद आपको सुनने के लिए, उनका पूजा देखने के लिए एक बहुत सुंदर अवसर आपको मिल रहे हैं। ऐसे अगर हो सकते हैं तो रंभापुरी जगत गुरु जी का और उज्जैन जगत गुरु जी का और केदार जगत गुरु जी का वो भी हो सकते हैं तो बहुत बढ़िया। इसका माध्यम से सभी भक्तों का जो दर्शन आशीर्वाद वो अगर कृपा करेंगे तो होगा तो बड़ी बात होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। महेश स्वामी जी करेंगे तो अवश्य होगी। इसलिए महेश स्वामी जी को वो अपना सोलापुर का जवाई, उनका बेटा भी सोलापुर का जवाई है। इसलिए ऐसे सदैव जो पंचपीठाधीश्वरों का सेवा उन्होंने करते रहना चाहिए। ऐसे एक अखंड आयुष्य उनके लिए मिलना चाहिए करके मैं एक भगवान का चरण में, ये पंचपीठाधीश्वर के चरणों में एक प्रार्थना करता हूँ। ऐसे आप लोग सभी लोग थोड़ा बहुत, क्योंकि बड़े बड़े सभा में बोलना अलग है, ये सिर्फ अपना एक रूम में बैठ कर बोलना अलग होता है। इसलिए इधर उधर कुछ भूल गए होंगे या बोलते वक्त में कुछ छूट गए होंगे। आप सभी लोग इधर उधर नहीं सोचते हुए आप सभी के एक अवसर, एक फेसबुक का माध्यम से आप लोगों का जो दर्शन या आशीर्वचन या एक संदेश आप लोगों का सुनने के लिए एक अवसर हमारे लिए भी, इस मठ के लिए भी, ब्रह्म वाटिका के लिए भी हम लोगों को जो गुरु जी का मतलब जगत गुरु जी का आशीर्वाद से एक अवसर मिला है। इसी अवसर को, क्योंकि पिछले साल जो जगत गुरु जी का जो उधर अनुष्ठान हुई पुणे में, तब भी बुलाए थे, लेकिन अनुष्ठान में रहते हुए नहीं आ पाए थे। अभी इस फेसबुक का माध्यम से मैं तो कहता हूँ कि पुणे में आ गया या अपना जो भारत में सभी एरिया में एक जाने के लिए अवसर, अपना स्वर ध्वनि जाने के लिए एक अवसर महेश स्वामी जी ने करवा के दिए। उनका ऐसे सदैव सेवा पंचपीठ का ऊपर सदैव श्रद्धा भावना ऐसे रख के उनका आयुष्य और बढ़ने के लिए एक चरणी विनंती, मतलब जगत गुरु जी का चरणी विनंती कि ऐसे आशीर्वाद दे दो। ऐसे ही काम आगे भी जाकर उनका सहयोग के लेकर सभी, मतलब उस कमेटी का सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे आगे भी उनका करने के लिए एक शुभ अवसर उनको मिलना चाहिए। ये सभी भक्त लोगों का सहकार से ये सब काम हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना जो एक पिता मठाधीश्वर भी जल्दी कर नहीं पाते, ऐसे काम वो एक संसारिक होकर वो कर रहे हैं। बहुत अच्छे ऐसे करने के लिए सदैव आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, सोलापुर सिद्धरामेश्वर का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर रहेंगे। इतना मैं कहकर मेरा 2 शब्द श्री गुरु चरणारविंद समर्पण करके विराम। ओम शांति शांति शांति।